Hello. Hello. Good Morning, morning, sir. sir. Good morning, friends. Yes. Yes, next topic uh, in this lesson, physiological factors determining the components of physical fitness. I have already taught you about the components of physical fitness. There are five type of component of physical fitness: strength, speed, endurance, flexibility, and coordination ability, or you can say agility. But in this topic, we read about only about the four components of physical fitness. First of all, what are the physiological factors which determining the strength? Physiological factors which determine the strength of an individual are here: size of the muscles, body weight, muscle composition, intensity of nerve impulses. These are the factors which determine strengths. First of all, we know about the size of the muscles. Size of the muscles, the strength of the muscle largely depends upon the size of muscle. It is well known that bigger and larger muscles can produce more force. जिसके मसल्स बिगर और लार्जर होंगे उनके अंदर जो स्ट्रेंथ होगी वो अधिक पाया जाता है. जैसे मान लीजिए WWF, यू हैव सीन इन WWF में आप लोगों ने देखा होगा कि दे हैव टू मच मस्कुलर स्ट्रेंथ.
उनके अंदर मस्कुलर स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, उनके बॉडी के टोनअप्स जो होते हैं ज़्यादा होते हैं। तो साइज ऑफ द मसल इज बिग एंड लार्जर। इसकी वजह से क्या है, उनके अंदर जो मसल, उसमें जो एनर्जी होती है और फोर्स होता है, वो एक लीन बॉडी मास की अपेक्षा उनके अंदर एक्सेस पाया जाएगा। सो the force produced by the same size of muscle in males and females is approximately same, but males are found to be stronger. लेकिन क्या है, मेल्स जो है स्ट्रॉन्गर पाए जाते हैं। अक्सर आप देख ले WWF में महिलाएं भी होती हैं, उनकी भी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है वो हायर आपको देखने के लिए मिलती है, और लगभग एक समान सबके सेम साइज होती है मस्कुलर स्ट्रेंथ। लेकिन जो स्ट्रेंथ है महिलाओं की अपेक्षा मेल्स में एक्सेस देखने के लिए मिलते हैं। So because they have larger and bigger muscles in the comparison to the females, with the help of different methods of strength training should be essential. अगर लार्जर और बिगर मसल्स अगर हम बनाना चाहते हैं या बनाते हैं तो ट्रेनिंग मस्ट होती है। ट्रेनिंग मेथड्स अप्लाइड बाय अस फॉर द मेंटेनिंग ऑफ मसल्स आर गिविंग द मसल्स टोन अप्स। मसल को टोन अप देने के लिए, लार्जर मसल मेंटेन करने के लिए, बिगर मसल मेंटेन करने के लिए ट्रेनिंग मेथड हम अडॉप्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स वी अडॉप्ट फॉर द दिस पर्पज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए हम लोग वेट ट्रेनिंग शेड्यूल्स अपनाते हैं। वेट ट्रेनिंग द साइज ऑफ द मसल कैन बी इंक्रीज एंड स्ट्रेंथ इज इम्प्रूव्ड। वेट ट्रेनिंग करने से, अगर इफ वी आर डूइंग वेट ट्रेनिंग methods, applying weight training methods, our muscles may be highly increased and may be stronger than other persons. If the person who are not involved in this weight training, the muscular power or muscular force will be less than that person who are doing weight training methods. So the strength is determined by the size of the muscles, यानी साइज ऑफ द मसल्स के ही बेस पर हो सकता है। लीन बॉडी मास, अगर लीन बॉडी मास अगर हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लीन बॉडी मास के अंतर्गत लेते हैं, तो लीन बॉडी मास मीन्स ये लीन बॉडी मास टोटली रिफर टू द टोटल बॉडी वेट, टोटल वेट बॉडी वेट फैट्स, उसको हम लोग लीन बॉडी मास में इंक्लूड करते हैं। मीन्स फैटलेस बॉडी weight is of the body is called lean body mass. Individuals having more lean body mass have more power. Sports person having more lean body mass are able to perform better in sports like weightlifting. You have seen for the different events, अक्सर हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट इवेंट्स के लिए डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स प्लेयर्स होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर एक प्लेयर अगर एथलीट से रिलेटेड है और जिस 100 मीटर का इवेंट रनर है, स्प्रिंटर है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इवेंट में भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसा नहीं है, दोनों के ही मसल साइज में डिफरेंसेस होंगे। लार्जर एंड बिगर मसल्स फाउंड इन द sprinter runners, and but the larger and bigger muscle is less in the long distance runners. So that is the difference of size of the muscles in different events for different individuals. अगर अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग गेम से रिलेटेड हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो अलग अलग आपके बॉडी मास होंगे। नेक्स्ट, बॉडी वेट। According to body weight, the individuals who are heavier are generally stronger than the individuals who are lighter. अक्सर है
बॉडी वेट जिसके अंदर ज्यादा होगा, हैवियर होगा, हु आर हैवियर जनरली स्ट्रॉन्गर होंगे किसकी अपेक्षा, जो लाइटर होगा। एक दुबले पतले व्यक्ति को ले लीजिए और एक मोटा तगड़ा अगर आदमी हो, तो उन दोनों को आप देख चेक कर सकते हैं कि अगर एक दुबला पतला आदमी अगर मोटे वाले आदमी को अगर धक्का दे, पुश करे, तो नो अफेक्ट इन हिज बॉडी। बट और वो मोटा तगड़ा आदमी अगर हु आर हैवियर जनरली इन बॉडी वेट, अगर वो उस पतले दुबले पतले व्यक्ति को अगर वो धक्का देता है, तो सोच लीजिए कि वो कहाँ जाएगा। ये कंडीशन सप्लाई होती है बॉडी वेट में। सो देयर इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन बॉडी वेट एंड स्ट्रेंथ अमॉन्ग इंटरनेशनल वेट लिफ्टर्स। इसलिए देखिए जो वेट लिफ्टिंग है, या आप कह सकते हो रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग दोनों की कंडीशन आपको देखने के लिए मिलती है कि दोनों के ही जो कंपटीशन होते हैं डिपेंड करते हैं वेट पर, टोटली रिलेटेड विद द वेट। मीन्स एक कैटेगरी बनाई जाती है, वेट कैटेगरी बनाई जाती है, उसी वेट कैटेगरी के अनुसार वेट लिफ्टिंग की कॉम्पिटिशन्स होते हैं और रेसलिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग और अदर इवेंट्स, बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं जहां पर वेट के अनुसार ही टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं, उसमें पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन टेक यू ऑलरेडी सीन ए फिल्म दंगल। आपने फिल्म एक दंगल देखा होगा जिसमें रेसलिंग की कंडीशन अप्लाई होती है। गीता फोगाट और जो भी है, व्हाट एवर इज हर नेम, जो भी उनका नाम है, उनकी जो बॉडी वेट है उसके अनुसार ही उनको उस बॉडी वेट में फाइट करने के लिए परमिशन मिलती है। इफ दे दैट गर्ल डिफीटेड, अगर वो गर्ल डिफीट हो जाती है कॉमनवेल्थ गेम्स में, कोई पोजीशन नहीं ला पाती है, तो देखिए उनके कोच एडवाइस करते हैं कि दैट गर्ल इज नॉट कैपेबल फॉर द इन दैट ग्रुप। यानी वो लड़की जो फाइट कर रही है, गीता फोगाट चाहे वट एवर जो उसका नाम रहा, वो फाइट करने के लिए तैयार होती है, तो वो उसको क्या है कम वेट में भेजने के लिए तैयारी करते हैं। ये कंडीशन अप्लाई होती है जब आप सक्सेस नहीं होते हैं, तो वो कंडीशन अप्लाई कर मीन्स दैट मीन्स द वेट इज इसेंशियल फॉर द इवेंट्स के लिए वेट का काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह से आपके कबड्डी है, इसमें भी आपकी वेट को चेक किया जाता है, वेट के अनुसार ही आपको उस गेम में पार्टिसिपेट करने दिया जाता है। जैसे सीबीएसई बोर्ड के थ्रू भी जो है कबड्डी टूर्नामेंट्स अगर कराया जाता है, क्लस्टर मीट होते हैं, तो उसमें आपके वेट को चेक किया जाता है। अकॉर्डिंग टू वेट अंडर 14 एंड अंडर 19 और अंडर 16 के जो कंपटीशन होते हैं, उसमें वेट के अनुसार ही पार्टिसिपेंट्स रखे जाते हैं, उसी के अनुसार पार्टिसिपेट करते हैं। इफ her or his weight is excess than weight that considering weight, उस वेट से अगर एक्सेस होते हैं तो उनको उस गेम और टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है। दैट इज द कंडीशन अप्लाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन वॉट एवर गिवन बाय द सीबीएसई बोर्ड फॉर द क्लस्टर मीट्स। सो बॉडी वेट इज इसेंशियल। So according to body weight and strength among international weightlifters, so the heavier weightlifters lift heavier weights. So body weight also determine the strength of an individual. इसलिए यह माना जाता है कि बॉडी वेट भी डिटरमाइन करता है आपके स्ट्रेंथ को। मसल कंपोजिशन इज टू टाइप्स। मसल कंपोजिशन आपके दो तरह से हम लोग कंसीडर करते हैं। मसल कंपोजिशंस is generally we are considering muscle consists of basically two types of muscle fibers. First one is the fibers
are capable to contract means fast twitch fibers. Fast twitch fibers and slow twitch fiber. Fast twitch fibers is also known as white fibers. इसको हम white fibers के नाम से जानते हैं और स्लो ट्विच फाइबर्स को हम रेड फाइबर्स के नाम से जानते हैं. These two type of fibers found in our body. हमारे बॉडी मसल कंपोजिशन में ये दोनों तरह के फाइबर्स पाए जाते हैं और इन दोनों तरह के जो फाइबर्स जो पाए जाते हैं इसी के बेस पर हमारे अंदर वो कैपेसिटी डेवलप होती है. जस्ट लाइक एरोबिक कैपेसिटी एंड एनएरोबिक कैपेसिटी हमारे अंदर डेवलप होती है जिसकी वजह से हम लोग किसी भी इवेंट्स को करने में कैपेबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट if the fast twitch fibers are capable to contract faster and therefore they can produce more force. यानी जिसके अंदर फास्ट ट्विच फाइबर पाया जाता है यानी एक्सेस फास्ट ट्विच फाइबर पाया जाता है उनके अंदर वो शक्ति होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा फोर्स अप्लाइड कर सकते हैं. ऑन द कंट्ररी अगर उसके रिवर्स में अगर लेके चलते हैं फॉर द स्लो ट्विच फाइबर्स आर नॉट कैपेबल ऑफ कंट्रैक्टिंग फास्टर ऑल्दो दे आर कैपेबल ऑफ कंट्रैक्टिंग फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन. यानी लंबे समय फास्टर कंट्रैक्शन नहीं होता है लेकिन वो लंबे समय तक काम करने में कैपेबल होते हैं. मीन्स लॉन्ग स्लो ट्विच फाइबर्स जिसके अंदर जिस व्यक्ति के अंतर्गत पाया जाता है यानी रेड फाइबर जिस व्यक्ति के अंदर पाया जाता है वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक एक्टिविटी करने में कैपेबल होता है. मींस दे हैव कैपेसिटी टू डिले फटिग्स. यानी इसके अंदर क्या है फटिग को डिले करने की कैपेसिटी सबसे अधिक होती है. मींस मैराथन रेसेस 21 किलोमीटर रनिंग मींस हाफ मैराथन 12 किलोमीटर्स 10 किलोमीटर्स 5 किलोमीटर्स की 1500 मीटर रेस ये सभी इवेंट्स करने की कैपेसिटी जो होती है इनके अंदर अधिक पाई जाएगी. ये वह व्यक्ति जिसके अंदर स्लो ट्विच फाइबर्स की मात्राएं यानी क्वांटिटी एक्सेस होगा उनके अंदर ये कैपेसिटी पाई जाती है. एंड इट इज टोटली रिलेटेड विद द जेनेटिक फैक्टर. ये आपके जेनेटिक फैक्टर से रिलेटेड होता है यानी हमारी ये जीन्स में ही पाया जाता है. अक्सर ऐसा माना जाता है कि हमारे पेरेंट्स के अंदर जो जीन्स होते हैं वो हमारे अंदर भी पाए जाते हैं. यानी हमारे पेरेंट्स के अंदर जो कैपेसिटी होगी नियर अबाउट लगभग 70 to 80% हमारे अंदर वो अपने आप में सेल्फ हमारे अंदर पाया जाता है. रेस्ट 10 to 20% विल बी ऑन डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. आप 10 से 20% जो होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर पर अफेक्ट करता है. ठीक. Fast twitch fibers means white fibers. The persons or individuals who have capacity to do anaerobic activities. Anaerobic capacity करने की मतलब एक्टिविटी करने की कैपेसिटी उनके अंदर अधिक होगी. विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स दे अप्लाइड मोर फोर्स. यानी ये अधिक फोर्स अप्लाइड करने में कैपेबल होते हैं. जस्ट लाइक 100 मीटर रनर्स 200 मीटर रनर्स 400 मीटर रनर्स इनके अंदर फास्ट ट्विच फाइबर्स यानी व्हाइट फाइबर की क्वांटिटी जो होगी एक्सेस पाई जाएगी. इसलिए ऐसे जो इवेंट होल्डर्स और पार्टिसिपेंट जो होते हैं फास्ट ट्विच फाइबर्स यानी आपके लॉन्ग शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस के लिए काफी कैपेबल होते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फास्ट ट्विच फाइबर्स एंड स्लो ट्विच फाइबर्स. ये जल्दी थक जाते हैं. इनके अंदर
जो है कैपेसिटी, लॉन्ग ड्यूरेशन की कैपेसिटी इनके अंदर नहीं होती है। ये 10 नियर अबाउट 10 मिनट्स और 5 मिनट्स से ज़्यादा रनिंग इवेंट्स नहीं कर सकते हैं, बट दे हैव कैपेसिटी टू फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन मीन्स above than 10 to 20 मिनट्स, 10 से 20 मिनट से अधिक यानी घंटों घंटों तक दौड़ते रहेंगे, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। That type of capacity they have, the where the individuals found red fibers. So the muscles which have more percentage of fast twitch fibers can produce more strength. The percentage of fast twitch fibers and slow twitch fibers is genetically determined and cannot be changed through training. ये जेनेटिकली हमारे अंदर पाया जाता है, ट्रेनिंग मेथड से इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सो हमने अभी बताया कि इसमें जेनेटिक फैक्टर वर्क करते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है 10 से 20% ही केवल इसमें वर्क करता है। सो इट कैन बी सेड दैट द परसेंटेज ऑफ दिस फाइबर्स डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ ए पर्सन, यानी फाइबर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि डिटरमाइन करता है कि एक व्यक्ति के अंदर स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो टोटली डिपेंड ऑन द फाइबर्स, आपके अंदर कौन सा फाइबर सबसे अधिक है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पर, आपके पेरेंट्स के अनुसार जो एंसेस्टर होते हैं उनके थ्रू आपको मिलता चलाता है, यानी आपके जीन्स में ही पाया जाता है वो चीज़। ऐसे ही सपोज दैट जो प्लेयर होते हैं जनरली उनके जो स्टूडेंट जो बच्चे होंगे, बॉर्न चाइल्ड होंगे, उनके अंदर भी जो है इस तरह की आपके जेनेटिक्स जो है जीन्स जो है उनके अंदर वो पाया जाता है। यानी वो प्लेयर का अगर लड़का है तो प्लेयर के क्वालिटी में उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ऐसे ही पढ़ने में बहुत बच्चे अच्छे होते हैं जिनके फादर का मैथ्स या अदर सब्जेक्ट जो होते हैं अगर अच्छे होते हैं तो उनका जो बच्चा होता है वो भी जेनेटिकली उनके अंदर यह पाया जाता है कि वो पढ़ने में ऑटोमेटिक अच्छे होते हैं। सो next point is intensity of nerve impulses. Intensity of nerve impulses, a muscle is composed of a number of motor units. The total force of the muscle depends on the number of contracting motor units. Whenever a stronger nerve impulse from central nervous system excite more number of motor units, the muscle will contract more strongly, or it can be said that the muscle will produce more force or strength. So the intensity of the nerve impulse also determines the amount of strength. So nerve impulses, speed of the nerve impulse also determines strength. If nerve impulse is fast and more forceful, there will be faster contraction of muscles. So more energy will be produced by the mitochondria of cells. Next, physiological factors determining speed. Speed. Next component of physical fitness is speed. For physiological factors determining speed, which is determined by the different factors, just like you can say here, mobility of the nervous system. Mobility of the nervous system. Mobility of the nervous system, our muscles contract and relax at the maximum possible speed as seen in the sprinting events.
This rapid contraction and relaxation of muscles is made possible by rapid excitation and inhibition of the concerned motor centers. So this is called the mobility of the nervous system. The nervous system can maintain this rapid excitation and inhibition only for a few seconds. यानी few seconds के लिए होते हैं जो स्प्रिंटिंग इवेंट से रिलेटेड होते हैं. अभी इससे पहले मैंने बताया था कि टू टाइप ऑफ फाइबर्स फाउंड इन यू. आपके में दो तरह के फाइबर्स पाए जाते हैं, दैट मीन फास्ट ट्विच फाइबर्स एंड स्लो ट्विच फाइबर्स. हियर totally related with the fast twitch fibers. For few seconds, they have more energy and more force or more muscle contractions. So rapid excitation and inhibition only for a few seconds, after which the excitation spreads to the neighboring centers, causing tension in the entire body. So this result is in decrease in speeds. After then क्या होता है, आपके अंदर एनर्जी रह नहीं जाती है और आपके अंदर जो स्पीड होगी धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाएगी. सो द मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम कैन बी ट्रेन बट ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट. सो स्पीड इज डिटरमाइंड टू ए ग्रेट एक्सटेंट बाय जेनेटिक फैक्टर्स. So excitability of the nerve impulses, contraction and relaxation of muscles is controlled by nervous system. हमारे किसके थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं? नर्वस सिस्टम के थ्रू. एंड द स्पीड और फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इज डिटरमाइंड बाय excitability of the nerve impulse. So speed of an individual is a genetic factor and it can be trained only up to some extent. अगर आपके अंदर जेनेटिक फैक्टर पाए जाते हैं तो आपको कुछ एक्सटेंट तक, मतलब कुछ हद तक आपको अगर ट्रेंड किया जाए तो आप सक्सेस हो सकते हैं. इफ यू हैव नॉट फाउंड देन यू कांट सक्सेस. नेक्स्ट इज मसल कंपोजिशंस. Muscle compositions already in previous topic also determining strength, उसमें भी मसल कंपोजिशन से रिलेटेड थे. तो मसल कंपोजिशन, muscle with greater percentage of the fast twitch fibers contract with more speed in comparison to muscle with lower percentage of fast twitch fibers. निश्चित है कि अगर फास्ट ट्विच फाइबर्स दो लोगों का अगर कंपैरिजन कर लिया जाए, अगर एक व्यक्ति में कम पाया जाता है और एक व्यक्ति में अधिक पाया जाता है तो निश्चित है कि जिसके अंदर फास्ट ट्विच फाइबर्स एक्सेस पाए जाएंगे. सो दे हैव मोर स्पीड इन कंपैरिजन टू लेसर परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर्स. सो द मसल कंपोजिशन इज जेनेटिकली डिटरमाइंड एंड कैन नॉट बी चेंज बाय ट्रेनिंग. इसको हम ट्रेनिंग शेड्यूल से हम लोग ट्रेन नहीं कर सकते हैं. बट अप टू सम एक्सटेंट वी ट्रेन दिस मसल कंपोजिशन बट नॉट एक्सेस. सो मसल कंपोजिशन इज टोटली जेनेटिकल which are found in our body. So in muscle compositions, different muscles of the body have different percentage of fast twitch fibers. So different parts of the body have different speed performance. ठीक उसी तरह से जैसे हर एक व्यक्ति अलग अलग होते हैं, हर सब में अलग अलग मसल कंपोजिशन पाए जाते हैं, इसलिए सभी लोग एक समान रूप में काम नहीं कर सकते हैं. ठीक उसी तरह से जस्ट लाइक आवर 5 फिंगर्स, अगर पांचों उंगलियां हमारी बराबर नहीं है, उसी तरह से इंडिविजुअल पर्सन भी, सभी इंडिविजुअल पर्सन भी एक समान नहीं है. सबके अंदर एक समान कैपेसिटी नहीं हो सकती है. टोटली डिपेंड आपके करते हैं उस फाइबर्स पर. सो नेक्स्ट इज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ. Explosive strength.
explosive strength for every quick and explosive movement. Explosive strength is indispensable. For example, a quick punch in boxing cannot be delivered if the boxer have lacks of explosive strength. यानी एक बॉक्सिंग पंच को ले लीजिए. इफ यू आर टेकिंग एग्जांपल ए बॉक्सर, अगर बॉक्सर एक बॉक्सिंग पंच मारता है किसी को, अगर उसके अंदर मस्कुलर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ अगर नहीं होता है तो ही कैन नॉट बी डिलीवर इफ द बॉक्सर लैक्स ऑफ एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ. यानी वो अच्छे से पंच अगर नहीं मार पाएगा, यानी उसके अंदर स्ट्रेंथ अगर अच्छी नहीं होगी तो सुटेबल वे में उसके जो पंच होंगे नहीं पड़ सकते हैं या नहीं लगेंगे. सो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ फर्दर डिपेंड्स ऑन द मसल कंपोजिशन, मसल इज साइज एंड मसल कोऑर्डिनेशंस. It also depends on the metabolic process. Except muscle composition, the remaining factor can be improved through training, which is turn will improve the speed to a limited extent. इसलिए क्या है, जिनके अंदर मसल कंट्रैक्शन होते हैं, मसल्स मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है, उनको ट्रेनिंग शेड्यूल्स कराए जाते हैं जिससे कि और अधिक स्ट्रेंथ उनके अंदर डेवलप हो. फॉर द दिस पर्पज वी आर फॉलोइंग द वेट ट्रेनिंग शेड्यूल्स एंड फार्टलेग ट्रेनिंग. दो तरह की ट्रेनिंग जो होती है मस्ट होती है फॉर द स्पीड एंड स्ट्रेंथ. स्पीड और स्ट्रेंथ के लिए ये दोनों तरह की एक्टिविटी हम लोग करते हैं. फार्टलेग ट्रेनिंग इसमें सबसे ज़्यादा होती है. व्हाट डू यू मीन बाय फार्टलेग ट्रेनिंग? फार्टलेग ट्रेनिंग इज टोटली रिलेटेड फॉर द इंड्योरेंस प्लस स्पीड एंड स्ट्रेंथ. तीनों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग मानी जाती है. इट इज टोटली रिलेटेड विद द नेचर से रिलेटेड होता है. नेचर के अनुसार, नेचर का क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार हम लोग इसमें इवेंट्स को में पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रेंड करते हैं. जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल हिली एरियाज, सैंडी यानी बालू पर, पहाड़ों पर हम चढ़ने और उतरने, क्लाइंबिंग, और डाउनफॉल के लिए हम लोग एक्टिविटी करते हैं. जस्ट लाइक यू कैन टेक एग्जांपल, हम लोग इसमें हमारा मसल कंट्रैक्शन जो होते हैं, एक्सेस होते हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा लगती है. जैसे हम लोग पहाड़ पर अगर हम लोग को चढ़ना होता है दौड़ते हुए, तो क्या है, हम बॉडी को बेंड कर लेते हैं और बेंड करके तब हम लोग आगे झुक कर तब आगे हम उस हिल पर चढ़ सकते हैं. अगर स्ट्रेट बॉडी को हम रखें तो हिल पर हम चढ़ने में कैपेबल नहीं हो सकते हैं. ठीक उसी तरह से किसी व्हीकल को अगर हमको मतलब हाइट पर लेकर जाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने व्हीकल की स्पीड को रिड्यूस करते हैं और गियर चेंज करते हैं. जब हम स्पीड कम करेंगे, गियर डाउन करते हैं, तब जाकर ही व्हीकल हमारी जो है आसानी से उस हिली एरियाज पर चढ़ सकती है. अदरवाइज हम टॉप मोस्ट पर गियर लगा दें तो हमारे क्या है, उस पर हमारी बाइक आसानी से नहीं चढ़ सकती है. मीन्स वो बंद हो जाएगी, खड़ी हो सकती है. ठीक उसी तरह से हमारे अंदर जो मैकेनिज्म है वो भी वर्क करते हैं. So it also depends on the metabolic process. Except the muscle composition and the remaining factors can be improved through the training, which in turn will improve the speed to a limited extent. The relative proportion of fast twitch fibers and slow twitch fibers determine to a large extent the maximum possible speed with which a muscle can contract. This proportion of fiber is genetically determined. This implies that top sprinters more percentage of fast twitch fibers. जो टॉप स्प्रिंटर्स होंगे उनके अंदर फास्ट ट्विच फाइबर्स जो होगा एक्सेस पाए जाएंगे. वेयर एज इंड्योरेंस एथलीट्स हैव मोर परसेंटेज ऑफ स्लो ट्विच फाइबर्स. अभी हमने इसके पहले भी हमने बताया कि जो इंड्योरेंस एथलीट्स होंगे, यानी जो लंबी दूरी के घोड़े माने जाते हैं या स्प्रिंटर माने जाते हैं, उनके अंदर स्लो ट्विच फाइबर्स की जो क्वांटिटी होगी एक्सेस पाई जाएगी, rather than the
100 मीटर रनर्स, 100 मीटर रनर्स के अंदर फास्ट ट्विच फाइबर्स जो होगा एक्सेस पाया जाएगा, यानी वाइट फाइबर उनके अंदर मोर परसेंटेज में होंगे, तो वो उनके अंदर एबिलिटी जो होगी स्पीड की एक्सेस होती है. सो दे हैव कैपेबल टू डू एनएरोबिक और एरोबिक, दो तरह के, विद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड without presence of oxygen. Without presence of oxygen, capable for, you can say, which have found fast twitch fibers, they are capable to run fast. Next point is flexibility. Flexibility has also determined the speed to a certain extent. Good flexibility allows maximum range of movements without much internal resistance. Flexibility also enables complete utilization of explosive strength. अगर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आपके अंदर है तो फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए. इफ यू हैव नो फ्लेक्सिबिलिटी देन यू कांट सक्सेस इन फिजिकल एक्टिविटीज. फिजिकल एक्टिविटीज में आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं. इसलिए आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, मसल फ्लेक्सिबिलिटी इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू if you are participating in any events. And last one is point is biochemical. Biochemical reserves and metabolic power. And metabolic power. In this point, according to biochemical reserves and metabolic power, for maximum speed performance, the muscles require more amount of energy at a very high rate of consumption for this purpose. So the phosphagen adenosine triphosphate ATP and creatine phosphate CP stored in the muscles should be enough. ये दोनों ही की मात्राएं हमारे अंदर एक्सेस होनी चाहिए. If ATP and CP means adenosine triphosphate and creatine phosphate store is less in contracting muscles, the muscle contraction due to insufficient energy supply becomes slow after a short time. The energy supply also depends on certain enzymes which increases the metabolic power. The amount of ATP, CP and rate of energy supply can be enhanced by training. इस ट्रेनिंग के मेथड के ही थ्रू हम इसको इनहेंस कर सकते हैं. Therefore, the biochemical reserves and metabolic power determine the speed. Means it will be the energy storage. एक तरह से एनर्जी स्टोरेज है ये हमारे लिए. एटीपी और सीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और क्रिएटिन फॉस्फेट दोनों ही जो है हमारे अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी माने जाते हैं. ठीक है, और ये हमारे अंदर बॉडी से एनर्जी रिलीज करते हैं. सो एटीपी एंड सीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और जो है क्रिएटिन फॉस्फेट आल्सो डिटरमाइन द स्पीड. इसलिए ये हमारे स्पीड को भी डिटरमाइन करते हैं. सो एटीपी